Actually, today is the ACCA result day. So since morning around 5 o'clock, those who qualified, those who passed, they are communicating. Maybe somebody is still sleeping. They will get up and then they will communicate, or maybe somebody couldn't clear and all that. Some mix and act. This is the final result of June 2022. You can say, first of all, the CMA US result came on, I think, 12th of July. Then the CIMA results came on 15th of July. And then this is ACCA results on 18th of July. And CPA results are, since the exams are with high frequency, they are regularly. It's not that the result is quarterly basis and all that. Whenever the student is giving exam, after 15 to 20 days, their results are announced. When the result comes, those who passed the exams, they are very happy. Those who couldn't pass, they are sad. Those who couldn't pass, जो लोग pass नहीं हुए, उसमें there are some who know that they will not be passing. उनको खुद को पता रहता है अंदर में. There are some who faced bad luck. Bad luck in the sense they studied well, but maybe they are not able to get through. ये हर एग्जाम में होता है. It's not that ACCA, CIMA, CMA, CPA. It's in Indian courses also. Even Indian CA Institute exam came, result came just after, I think, 2 days back. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो भी theoretical subject होता है, like in skill level auditing, like in professional level EPM, SBL, and in professional level, even though अगर हम लोग SBR और AFM की बात करें, they are also huge practical and theoretical. The calculations are less, more and more understanding, explaining those understanding exam में ज्यादा रहते हैं. But you can say, or I can say, कि in SBR, AFM, the calculation parts, the practical parts are more. But in APM, SBL, the theoretical parts are more and more. अगर हम लोग ऑडिटिंग में जाते हैं, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो भी थ्योरी बढ़ती है. अगर हम लोग टैक्सेशन में जाते हैं, देन ऑल्सो थ्योरी इज वेरी हाई. सो इफ द स्टूडेंट सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट इन प्रोफेशनल लेवल इन ACCA, वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्योरली थ्योरी. SBL तो प्योर थ्योरी है ही है, वो सभी को देना है, कंपल्सरी है. एंड APM ऑडिटिंग और एडवांस टैक्सेशन, विच एवर दे विल सजेस्ट वन, माने सेलेक्ट वन, दैट विल बी थ्योरी ओनली. For a theory subject, generally we need to study less as compared to a numerical subject. जितना hours of study आपको SBR, AFM या इन स्किल लेवल FM, FR और PM के लिए करना है, उतना स्टडी you don't need to do on theoretical papers. But then still, I will say that the result is not that ki auditing ka result is very bad, or in the professional level APM, FM, AFM result. Whether you go for APM, whether you go for AFM, whether you go advanced auditing and assurance, whether you go advanced taxation, चारों में result is around 30-35%. Because those are elective papers, और elective paper में student need to be very well prepared. I always think that when we study a theoretical subject, maybe अगर हम लोग स्किल लेवल में ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, maybe अगर प्रोफेशनल लेवल में APM पढ़ रहे हैं, we are already studying for around 1 month, or maybe we are studying advanced auditing and assurance, आपको SBR और AFM से कमती पढ़ना है, कम पढ़ना है. Yes, hours of study is less. But then there is a different approach in theory subject as compared to numerical subject. Numerical subject में out of 100, 90% student enjoy study. जब कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, PL अकाउंट बना रहे हैं, कंसोलिडेशन ग्रुप अकाउंट्स बना रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, when we are doing AFM, doing some forex calculation, interest rate calculations,
वेदर इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम और नॉट, फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। थ्योरी में क्या होता है कि व्हेन वी आर रीडिंग, मे बी टेकिंग क्लास, यस सर, मे बी टेकिंग क्लास, बट थ्योरी में होता क्या है, हम लोग लिख के करते नहीं है बिकॉज मजा नहीं आता है। वेन वी आर डूइंग स्टडी देन वी डोंट एंजॉय राइटिंग द थिंग्स। होता क्या है, वेन यू रीड समवेयर, वेन आई एम सेइंग समथिंग, देन आपको सब समझ में आता है, तो आपको लगता है हो गया। लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस इन राइटिंग नहीं होने से एग्जाम में हम वो आउटकम नहीं दे पाते। इन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल में क्या होता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं बिकॉज आपको मजा आता है। यू आर इंजॉइंग वाई डूइंग प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, जो जनरली आई विल से 100 में 90% स्टूडेंट को अच्छा लगता है। थ्योरी लिखना अच्छा नहीं लगता, और थ्योरी लिखने के बजाय जैसे ही हम पढ़ते हैं हमको समझ में आ जाता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि जो थ्योरी हम लिख नहीं रहे हैं वो एग्जाम में हम प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर आउटकम नहीं दे पाएंगे। क्लासेस में भी जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट मॉडल आंसर्स को रेफर करके सबमिट करते हैं। लाइक आई विल से, जस्ट एक एग्जाम्पल, जब अभी मॉक टेस्ट चल रहा है देबार से, मिस्टर बागची, दिस इज सीमा केस स्टडी, प्योर थियोरेटिकल एग्जाम है, प्योर थियोरेटिकल एग्जाम, एंड द मॉक टेस्ट आर गोइंग ऑन बिकॉज दे हैव एग्जाम्स आफ्टर 15 डेज। अभी 15 दिन बाकी है लेकिन मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उनको लिखने बोला गया, उन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीडरशिप। आई एम नॉट रीडिंग, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि अगर स्टूडेंट ऐसा एग्जाम में लिख कर आता है, अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का, उसको 20 में 20 मिलेगा। 20 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20, बिकॉज आई कैन नॉट राइट दिस मच व्हाट ही हैज रिटन। बट वो एग्जाम पहले दिए हैं, फेल हुए हैं। 80 इज द पास मार्क्स, आउट ऑफ 150 ही स्कोर्ड 77 और 76। क्वेश्चन यह आता है कि वो पास्ट एग्जाम में फेल क्यों हुए, जब वो इतना बढ़िया लिख सकते हैं। When he can write the answer 20 out of 20, still in the exam why he failed earlier? अभी वो दोबारा दे रहे हैं। मेरे को केवल एक ही चीज समझ में आता है कि जब आंसर लिखा जा रहा है, और आप मॉडल आंसर देख सकते हो, सब यही लैंग्वेज लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, सारा हेडिंग ऐसे ही है, पहले लीडरशिप, फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस, फिर उसके बाद ऐसे डिट्टो। मे बी आई एम नॉट शोइंग द स्क्रीन, सॉरी। इफ एनी एग्जामिनर, नॉट मी, अगर इस आंसर को चेक किया जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो ही विल बी गेटिंग 20 में, मैं तो 20 दूंगा, मे बी समबडी विल गिव हिम 18, 19, बट कोई भी इनको 90% से नीचे मार्क्स नहीं देगा थ्योरी में। तो जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं 150 मार्क्स का, तो भी हम लोग का 90% मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? ही हैज रिटन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑल द पॉइंट्स विच आर प्रॉपर, इन अ प्रॉपर वे, एक्सप्लेनेशन यूज विद द केस स्टडी, सब कुछ लिखा है उन्होंने। उसके बाद भी वो क्या मैसेज कर रहे हैं कि सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और कुछ हो सकता है। सर मेरे को तो आता नहीं है, बिलीव मी, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अदर देन वॉट एवर ही हैज रिटन। तो मैं उनको अगर क्लास में पढ़ाऊंगा भी तो क्या पढ़ाऊंगा? अभी उनको इतना अच्छा आंसर लिखने के बाद भी ऐसा मन में क्यों हो रहा है कि सर और कुछ होता है क्या? जब आपने पूरा छाप दिया तो और मैं क्या बोलूं? लेकिन ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने देख देख के लिख दिया, यू हैव सबमिटेड द मॉडल आंसर्स, उससे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आप अपने आप को एग्जाम सिचुएशन टाइप टेस्ट नहीं कर रहे हो। एग्जाम में अगर ये मान लीजिए ये आंसर, ही ऑलवेज कंप्लेन कि सर एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, आफ्टर रीडिंग आई कुडंट राइट द आंसर प्रॉपरली इवन दो आई नो। बट जब मालूम है कि एग्जाम में वी विल बी टेकिंग 30 मिनट्स टू राइट द आंसर्स, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वाई वी आर टेकिंग 40 मिनट्स, वाई वी आर टेकिंग 60 मिनट्स। तो मैंने इन लोगों को मेल किया, फिर से मैंने मेल किया,
अब मैं कैसे, when you are in the class I am explaining, when you are not in the class I am writing the mail कि it's a request to all of you, please follow the instructions I am giving in class again and again. बार बार मैं बोल रहा हूं, please write the answers in your own language without copy pasting from anywhere. You can refer anywhere before writing, because अभी उनका मॉक पेपर ऐसे चल रहा है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद है, ध्यान नहीं है, आप पहले उसका स्टडी कर लीजिए. यू डू स्टडी 1 आवर 2 आवर्स, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो रेगुलरली. प्लीज राइट द आंसर इन 30-35 मिनट्स. एज दिस यू विल गेट इन द एग्जाम ऑल्सो. आपको थोड़ी ना 30-35 मिनट से ज्यादा मिलेगा. एज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम, बिकॉज बैच में 7-8 जन, आधे लोग पहले एग्जाम देकर क्लियर नहीं हुए. कुड नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ प्रेशर, बट स्टिल वी आर नॉट वर्किंग इन टू एनालाइज आवर परफॉर्मेंस इन द गिवन टाइम फ्रेम. ये सब बात मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त बोला, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे. तो नहीं फॉलो करने से क्या हो रहा है कि रिजल्ट इज निगेटिव. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रिजल्ट निगेटिव मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, सपोज वी आर स्कोरिंग इन ACCA बिटवीन 40 to 50, somebody score in auditing 50, पास हो गया. बट इफ somebody score 48, तो 48 और 50 में अंतर क्या है? देयर इज नो डिफरेंस. 48 and 50 आर सेम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बट एक फेल है, एक पास है. 50 वाला और 48 में कोई अंतर नहीं है. इट्स जस्ट अ गुड लक बैड लक. 50 गुड लक, 48 बैड लक. क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम थ्योरी पेपर में फेल क्यों होते हैं, विच यू कैन एनालाइज इन आवर क्लासेस. कि जब मैं रेगुलरली मान लीजिए देखता हूं कि कभी आज सरप्राइज टेस्ट करते हैं, तो हम लोग उसको लिखकर उस समय नहीं देते. हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं है. अरे भाई अभी एक पहना हो गया, अभी साथ साथ क्लास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उस आंसर को लिखना. जो भी, सपोज सुब्रत यू आर राइटिंग, यू हैव ऑलवेज रिटन द थिंग्स विच इज नोवेयर रिटन. आपने जब भी 2 बार 3 बार मैंने टेस्ट लिया, आपने मन से सब लिखा. कहीं कहीं पर गलत होता है, कहीं ठीक होता है, लेकिन थ्योरी को समझना होगा ना कि जो इंस्टीट्यूट का आंसर लिखा हुआ है या जो मैं बोल रहा हूं, आप हू बहू वो कैसे उतार सकते हैं? वो नहीं उतार पाएंगे आप. और सिचुएशन एग्जाम में अलग होंगी. आप उसके लिए अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे. मैं अगर उसके लिए टेस्ट नहीं कर रहा, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ, तो एग्जाम का रिजल्ट निगेटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. इवन दो मैंने स्टडी की है तो भी. और अगर स्टडी नहीं की है तब तो निगेटिव होएगा ही, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ओनली अ गुड टीचर. आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो, अगर वहां आपको अच्छे से गाइडेंस दिया जा रहा है और मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आप दूसरे जगह जो क्लास ज्वाइन करोगे, उसके कारण जो पास हुए वो पहले वाले के कारण ही हुए हैं. आपको केवल लगता है कि यहां पर, बिकॉज इट इज नॉट दैट देयर आर ओनली 1 or 2 टीचर्स इन द वर्ल्ड टू टीच प्रॉपरली. ऐसा कुछ नहीं है. देयर मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह अच्छा है, बट अच्छे कहीं तो होंगे. आप जहां पढ़ रहे हो उनकी सारी बात, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको मेरा A to Z मानना होगा. यू कांट एक्सेप्ट 90% ऑफ माई थॉट प्रोसेस. इफ यू एक्सेप्ट 100%, देन प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में कम आएंगी. आप जब कोई भी चीज आंसर लिखते हो, मैं बहुत बार बोलता हूं कि मैं नहीं लिख सकता, तो मान लीजिए चांसेस ये आता है आप कहां से लिख दोगे. आपका आंसर मॉडल आंसर से 80% एकदम कोरिलेट करता है. ऐसा कैसे हो गया? इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट. हाउ कैन यू राइट एग्जैक्टली वॉट एवर रिटन इन द मॉडल आंसर्स? ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ लिए, उसके बाद आंसर लिख रहे हो, ठीक है, फिर वो चेक करने के लिए नहीं देना है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो चेक करने का कोई लॉजिक ही नहीं निकलता है ना. जब थ्योरी पढ़ रहे हैं, हर समय चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस लिख के करना होगा. बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, से SBR, से APM, AFM, से इन ACCA जो PM, FM, FR है, आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ने का मन करता है. लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन निकाले, आंसर पढ़ा, सोचा, बंद, बस.
That's the big issue. Then we are hovering around 50. Even though theory subjects are requiring less study, but still भी हम लोग का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता थ्योरी सब्जेक्ट्स में, जबकि पढ़ना कमती है, बिकॉज हम वो नहीं समझ रहे जो गलतियां हमसे हो रही हैं. सो दोज मिस्टेक्स इफ वी रिपीट, और बिलीव करिए इन एनी कोर्स, सीए इंडिया, सीडब्ल्यूए इंडिया, सीमा, एसीसीए, सीपीए, सीएमए यूएस, कोई भी कोर्स, सीएफए, एफआरएम, जो स्टूडेंट एक बार फेल होगा उसका चांस दोबारा फेल होने का बहुत ज्यादा है. यू विल से वाई? माई 30 years एक्सपीरियंस. सीए में कोई फेल हुआ, दोबारा वो फिर फेल होता है. उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है. रीजन एज पर मी देयर आर 2 reasons. One is demotivation. Whenever you fail the exam, you are very dissatisfied. You are purely demotivated. आपको अगर कोई 2 बात बोल भी रहे तो भी आपका मन एकदम शांत है, दुखी है. जब आदमी कोई काम करता है एंड वो अगर दुखी है, कभी भी वो काम अच्छा नहीं होएगा. अगर मैं दुखी हूं पढ़ाने में, मेरे को मजा नहीं आ रहा, कि आज क्लास नहीं लेते हैं, हाउ कैन आई टीच वेल? आप क्लास करने के टाइम पे आपको मजा नहीं आ रहा, आप कैसे आउटकम क्लास में दोगे? यू अंडरस्टैंड? तो जब हम लोग फेल होते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं. और कोई जन अगर पहली बार लाइफ में फेल होता है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में भी, और जो कभी नहीं हुआ है, वो तो दूसरे से फेस नहीं मिला पाता. घर में मम्मी पापा से, मान लीजिए मेरे से, या कोई और को आप जिसको गाइडर मानते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, मतलब somebody can say failure is the pillars of success, but I don't believe in this. एक बार फेल होने से पूरा का पूरा दुनिया खराब हो जाता है. टीचर खराब, मम्मी पापा ये नहीं किए, मैं, सब कुछ गड़बड़ लगता है. हम लोग वो नहीं सोचते कि फेल हुए क्यों. What was the reason of my failure? What is the exact reason which I need to pinpoint? और साथ में हम मोटिवेट अपने आप को नहीं कर पाते कि फेलियर हो गया तो क्या हुआ. अगर सीए में फेल हो गए, 6 महीना बाद फिर एग्जाम होगा. अगर कोई आप एग्जाम नहीं दे रहे, कोई काम कर रहे हैं, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हो गया जीवन में? लाइफ बहुत बड़ी है. हम ये बात को सोचते नहीं कि फेलियर इज नॉट एन एंड. अब बच्चा अगर चलता है, गिरता है ना, तब तो खड़ा होके चलता है. ये बात को बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने में, बट करने में अच्छा नहीं लगता. कि अगर फेल हुए, मेरा प्रॉब्लम्स कहां है, कहां पर इश्यूज है, कहां पर मेरे को ध्यान देना है, कहां पर मेरे को इंप्रूव करना है, क्या गलती मेरे से हुई. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इन थ्योरी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स आर फेलिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. कि चीज पढ़ रहे हैं, दोज हु आर नॉट स्टडिंग, मैं उनके बारे में नहीं कमेंट कर सकता बिकॉज वो उनको पता है. लेकिन जो पढ़ के उसके बावजूद भी मान लीजिए बैड लक, स्कोरिंग 45, 58, व्हाटएवर, वो ऐसे फेल नहीं है बिकॉज नंबर 50 आए, 48 आए, डजेंट मैटर. वो मेरे हिसाब से तो पास ही है, बट इंस्टीट्यूट के अनुसार तो आप फेल हो गए ना. अब आपको देखना है मेरा 48 के बदले 68 क्यों नहीं आता है, मैं 50 के पास ही क्यों खड़ा रहता हूं. थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. आपको दिखेगा कि आपने पढ़ाई की, लेकिन एक ही गलती आपने की कि आप क्वेश्चंस को लिख के किए नहीं. मॉक टेस्ट 3 घंटा में नहीं दिए, और अगर आप दिए तो आप थोड़ा चोरी किए अपने आप से. आप मॉक टेस्ट देने के पहले दूसरा चीज रेफर कर रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, मॉडल आंसर्स नहीं पढ़ रहे हैं, गाइडलाइंस को रेफर नहीं कर रहे हैं, अपना जो गलतियां हैं उनको इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं सब्सिक्वेंट राइटअप पे. चाहे आप मेरे से क्लास लें, किसी और से, अपने आप, उससे मतलब नहीं है. बात ये, यू नीड टू पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स. और मिस्टेक एक ही जगह है कि इतना सारा थ्योरेटिकल एरियाज है. जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो तो पूरे सिलेबस से आएगा. आप कुछ भी लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा. यू नीड टू राइट इन द राइट डायरेक्शन. क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, मैं लिखूं, लिखने के बाद मैं मॉडल आंसर पढ़ूं, मेरे को दिखेगा कि मेरे यहां गलती की है, ये गलत है, इसके ऊपर, बिकॉज मॉडल आंसर से गाइडलाइंस पढ़ेंगे, मार्किंग गाइडलाइंस, खुद में समझ में आएगा गलती कहां कर रहे हैं. और जब गलती करके बार बार सुधारेंगे, बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई फेल पास तो नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि आपको इंप्रूव कहां करना है, तो इन दैट केस आप पास होगे.
और 50 नहीं, फिर 60 प्लस ही आएगा। बिकॉज वेन यू आर ऑलरेडी हार्ड वर्किंग, वेन यू आर ऑलरेडी स्टूडियस, तो इन दैट केस फेल होने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है ना। जब मैं पढ़ता नहीं हूं तो मैं फेल होऊंगा या होंगी, लेकिन जब मैं पढ़ने में ठीक हूं, आई एम वेरी वेल इन स्टडी, तो क्वेश्चन ऑफ फेलियर डजंट अराइज। एग्जाम में क्वेश्चन आने से हम अच्छा से नहीं लिख पाते, तो एग्जाम में तो हर बार नया क्वेश्चन आएगा। आप अगर अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत बार आप मॉक आंसर्स भी ठीक से नहीं लिख पा रहे। जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तभी तो पास होएंगे ना, और कैसे होएंगे? और सब्जेक्ट ऑलरेडी डिफिकल्ट है, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है एसीसीए में, सारे में पास परसेंटेज खराब है। तो ध्यान देना होगा कि आई नीड टू बिकम परफेक्ट। पूरा का पूरा परफेक्शन आने से ही एएफएम, एपीएम, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिटिंग में से 2 पास होगा। एसबीएल, एसबीआर का रिजल्ट 50% करीब है। नॉर्मली उसमें स्टूडेंट फेल नहीं होता है, इवन दो एसबीएल थ्योरी है, फिर भी नॉर्मली नहीं होता, बिकॉज वहां पर परसेंटेज ठीक है, आप मोटा मोटी परफॉर्म करते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पेपर्स आर डिफिकल्ट देन स्किल लेवल पेपर्स। डिफिकल्टी लेवल तो ज्यादा है, आपको बच्चे से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरी गलतियां कहां हैं। फेल होना इज नॉट ए टेंशन, आफ्टर 3 months अगेन एग्जाम विल बी देयर। लेकिन अगर आप 3 months के बाद एग्जाम दोगे तो क्या गारंटी आप पास होगे, जब आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि मेरी गलतियां कहां हैं, कहां मेरे को इंप्रूव करना है। दैट इज माई एडवाइस, माई पॉइंट ऑफ थॉट प्रोसेस। बिकॉज मैं तो बोलता हूं कि मैंने तो आप लोग सबका रिजल्ट के सामने लिख कर रखा है, सबके सामने। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जून का रिजल्ट, नव जनक्रीत, आपके सामने मैंने क्या लिखा है। मैंने आज नहीं लिखा है, बिलीव मी, विद्या कसम, मैंने 20-25 दिन पहले अपने टीम को लिख कर दे दिया है कि भाई ये लोग पास होएंगे, ये फेल होएंगे, ये ऐसा है, ऐसा है। जनक्रीत, जनक्रीत, अच्छा इधर देखना पड़ेगा ना, सॉरी, जनक्रीत ईपीएम, मैंने लिखा है मे पास। मैंने ये नहीं लिखा कि आप पास होंगे गारंटी है, मैंने लिखा है मे पास। क्यों लिखा आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक दिन से नहीं देखता, मैं तो हर दिन देखता हूं आप क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। तो इसमें मे पास में बैड लक हो गया। मान लीजिए अभी हम लोग बात करें सृष्टि, मैंने अभी तक पूछा नहीं सृष्टि क्या हुआ, लेकिन मैंने आपके केस में भी मे पास ही लिखा है, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस वगैरह रेस कर रहे थे लास्ट में, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इवन दो आई वॉज टेकिंग लाइव क्लास फॉर एसबीआर, नेवर अटेंडेड, नॉट सॉल्व द मॉक पेपर, एंड देन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आस्किंग स्लाइटली इलॉजिकल क्वेश्चन, तो मेरे को लगा गड़बड़ होने का चांस है, मेरे को ऐसा लगा था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आपका 56 नहीं, आपका 76 आना चाहिए। जितना आपका ब्रेन है, बुद्धि है, यू शुड बी स्कोरिंग 60 प्लस एटलीस्ट। बट एसबीआर पेपर है तो थोड़ा पास परसेंटेज ठीक है। सृष्टि मैंने लिखा है मे पास। मैं कुछ गलत नहीं लिखता, मेरे को पता है आपका लेवल बहुत कम है यार, एपीएम का स्टूडेंट बहुत कम है। जो भी किया है अब वो आपसे भी नीचे है, हो सकता है मैंने फेल ही लिख दिया हो यार। 1 सेकेंड देखते हैं। एपीएम कुणाल शर्मा, ये कुणाल शर्मा ने एपीएम एसबीएल दोनों एग्जाम दिए, मैंने इनके लिए लिखा है विल पास। देख लीजिए, मेरे को अभी रिजल्ट मालूम नहीं है इनका, ये कभी लाइव क्लास नहीं करते। एपीएम जनक्रीत हो गया, और एपीएम कौन है, एपीएम के अंदर निखिल जैन, इनका मैंने लिखा होगा मे पास, मे पास, ठीक है। और कौन है एपीएम में, सॉरी आई वॉज नॉट शेयरिंग द स्क्रीन। एपीएम का 3 ही लोग है यार,
एपीएम एग्जाम इज गिवन फ्रॉम आवर क्लासेस ओनली 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट लोगों ने एपीएम का एग्जाम जून में दिया है। तो मैंने 1 जन के लिए पास लिखा है, 2 जन के लिए मे पास लिखा है। 2 जन में 1 जन का तो मे पास बैड लक हो गया, दूसरा का मेरे को अभी पता नहीं है। दोनों का हो सकता है मैसेज किए होंगे, मैं आधे घंटे से नहीं देख रहा, सॉरी, बिकॉज आई वॉज टेकिंग बेदिंग एंड ऑल दैट, सब कर रहा था, रेजी हो रहा था, तो इसीलिए ना। मेरा क्या बोलने का मतलब है, प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं आपकी कैटेगरी में मे पास क्यों लिखता हूं। कोई भी कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट के लिए वाई आई एम राइटिंग मे पास, प्लीज अंडरस्टैंड। मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट are not doing live classes, not submitting any mock answers and all that, and still they are giving exam. Then I don't know about them because there are few students like that. तो मैं उनके सामने मे पास ही लिखता हूं बिकॉज मेरे को कैसे मालूम क्या किया नहीं किया। लेकिन अगर स्टूडेंट क्लासेस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सबमिट कर रहे हैं, तो इन दैट केस मेरे को उसका लेवल पता है, तो मैं इन दैट केस उसके सामने मे पास लिखता हूं। अगर उसने रेगुलरली क्लासेस में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो उनके सामने मे पास लिखा रहेगा। जैसे अभी अगर सीसीर एग्जाम देंगे तो उनके सामने लिखा जाएगा विल फेल, व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट अभी उनका कंडीशन लड्डू है। अभी सुब्रत के सामने लिखा जाएगा मे पास। अभी बहुत अर्ली है बिकॉज हम लोग और 1-1.5 महीना पढ़ने वाले हैं, बट जानने के बावजूद तो हम लोग प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे ना। इससे कोई मतलब नहीं आपका ऑफिस में क्या हो रहा है, आपका हेल्थ इश्यू क्या है, कुछ भी। एज आई ऑलवेज से, एलाबाई इज नॉट एक्सेप्टेड। आपके साथ ये हुआ वो हुआ, कोई मतलब नहीं। आप जो परफॉर्म क्लासरूम में कर रहे हो, मेरे को वो फीलिंग आ रहा है। और अगर आप सोचिए मैं शिशिर हूं और आप अगर प्रकाश सराफ है, वही फीलिंग आपको भी आता। बिकॉज सक्सेस नॉट डिपेंड ऑन वन डे व्हेन वी आर गिविंग एग्जाम, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन आवर इंटायर प्रोसेस, आवर इंटायर स्ट्रैटेजी, आवर इंटायर कंट्रोल प्रोसेस, उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करता है। एग्जाम का रिजल्ट आपका सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं करता। एग्जाम का दिन आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड नहीं करता। आपने उसके लिए कितना एफर्ट्स दिया है, राइट डायरेक्शन में दिया है कि नहीं, वो डिसाइड करता है आपका पास और फेल। मान लीजिए कोई जन 50-55 ले भी आया, आई डोंट कंसीडर हिम एज, यू कैन से सृष्टि 56। मेरे को लगता है कि आपका 76 आना चाहिए। जब ऑलरेडी अपने पूरे एग्जाम्स इसके लेवल में देकर आ रहे हैं, अपने को अच्छा खासा एफआर का नॉलेज है, तो एसबीआर में तो रिजल्ट आपका तो 60 से कम आना ही नहीं चाहिए। इट इज बैड ऑन माई पार्ट एंड योर पार्ट बोथ दैट यू आर स्कोरिंग 56%, विच इज नॉट गुड। तो ये समझ लीजिए कि एपीएम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू पास। एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू पास। एपीएम छोड़ दीजिए, एपीएम, एएफएम, देन एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एडवांस टैक्सेशन, ये चारों को स्टूडेंट अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा, थोड़ा लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, उसका पास होना मुश्किल है। मे बी 50 आ जाए, गुड लक बैड लक, बट अगर 60+, 70+ स्कोर करना है, थोड़ा दम देना होगा, दम लगाना होगा, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट करना होगा, देन वी कैन पास। जब रिजल्ट आता है तो हम लोग ये बातों पे ज्यादा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, एग्जाम कल नहीं है, अभी भी अराउंड 50+ डेज एग्जाम में बाकी है। अभी भी अगर हम लोग प्रॉपर राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। कोई एपीएम में फेल ही नहीं होएगा, चाहे रिजल्ट 30% हो तो भी वो आपको और मेरे को अपने आप पहले ही दिखने लग जाएगा कि अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में। 1-2 बार जनक्रीत ने दिया, लेकिन वो डिस्कस किया होगा कि आपका सर ये चैप्टर से ये क्वेश्चन है, मैंने ये आंसर लिखा है, बिलीव करिए सर मैंने कोई रेफर नहीं किया, उसके बाद इंस्टीट्यूट का आंसर ये है और मेरा आंसर एकदम अलग है, बिकॉज जो कि होना 100 में 90 बार है। 90 टाइम्स जब आप आंसर देखे बगैर लिखोगे, आपका उनसे नहीं मिलेगा, तो आप मेरे को मेल करोगे आपका आंसर, इंस्टीट्यूट का आंसर, आपको इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ के तकलीफ हो रही है। तकलीफ मतलब यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑल्सो करेक्ट, मे बी दे हैव रिटन डिफरेंट आंसर बट यू आर ऑल्सो करेक्ट। जब आपको उनका आंसर देखकर पता ही चल गया कि मैं गलती हूं, तब तो सबमिट नहीं करना है। पता है कि भाई मैं गलत हूं तो सर क्या बोलेंगे, वो तो दिख रहा है।
लेकिन जब आपको दिख रहा है कि उनका अलग है मेरा अलग है, फिर भी मैं सही हूं, और आप सही क्यों हैं, आप वो चीज जिस दिन मेरे को देने लगेंगे, एक बार नहीं 4-5 बार, तब मैं आपके सामने यहां लिखूंगा यू विल पास। मे भी आपने गलतियां 5 बार की है, तब यहां पर आपके सामने लिखा रहेगा विल पास। विल पास ये कौन आ गया? आयुष खंडेलवाल जी। आयुष खंडेलवाल, मैंने विल पास लिखा है, लेकिन आयुष खंडेलवाल जी टैक्सेशन में पास हुए हैं, ऑडिटिंग में गड़बड़ हो गया उनका। मैंने विल पास दोनों में लिखा है, ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग में उनका दूसरा बार गड़बड़ हुआ। पिछली बार केवल ऑडिटिंग का एग्जाम दिए थे, टैक्स ऑन ऑडिट, ऑडिट फिर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ होने का कारण एक ही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। वैसे मेरे को लगा था कि सिंस वो पिछली बार भी अच्छे से पढ़े थे, इस बार मैं ऑडिटिंग तो नहीं पढ़ा रहा था, टैक्सेशन आई वाज टीचिंग, बट स्टिल ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही शुड पास। बट बैड लक, नंबर कोई 45 से कम नहीं आया होगा, लेकिन फिर हम लोग 50 के पास ही खड़े हैं। और अभी जब एपीएम वो पढ़ते हैं तो एक बार भी आंसर लिखकर नहीं दिए, एक बार भी, नॉट ए सिंगल टाइम। यानी कि हम इस सब्जेक्ट को भी ऑडिटिंग जैसा बना रहे हैं, समझ लीजिए भाई। देन यू कैन से विल पास। और किसका लिखा हुआ है? कुणाल का लिखा है मैंने। अद्रिजा रुद्रा, सी गेव द टैक्सेशन एग्जाम, विल पास लिखा है। बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह नहीं करती हैं वो, मेरा तो कोई नहीं करती, बट उनका ब्रेन ठीक है। जब क्लास अटेंड करती है रेगुलरली, सी अटेंड, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छा से जवाब देती हैं, तो मेरे को उनका ब्रेन का लेवल बढ़िया लगता है। बट वाई डोंट सी आंसर, मॉक आंसर्स, आई डोंट नो, बट स्टिल सी विल पास बिकॉज ब्रेन, किसी किसी का क्या होता है अपने आप में ही लेवल बढ़िया है, मैं क्या करूं, मैंने उनको कोई बढ़िया नहीं बनाया, ठीक है। बट अगर मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, सी कैन बिकम अ रैंक होल्डर, रैंक में लेवल में जा सकते हैं, बट नहीं करते। सृष्टि रैंक में जा सकती है लेकिन नहीं करती, कि सृष्टि आप रैंक होल्डर हो, बट आपको वो पूरा बात मेरा मानना होएगा, बिकॉज मेरा तो मन ऑलवेज दुखी होएगा जब आप केवल पास बोलोगे। जिस दिन आप रैंक लाओगे उस दिन मजा आएगा यार, कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रैंक होल्डर कैटेगरी, दे शुड बी गेटिंग रैंक्स इन द एग्जाम, लेकिन फिर भी नहीं आता है बिकॉज हम वो पूरा एफर्ट्स नहीं देते। तो वो एफर्ट्स अगर हम दें तो जो नॉर्मल आदमी है उससे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। मे बी एटलीस्ट इंडिया रैंक आए, वैसे तो इच्छा वर्ल्ड रैंक की होती है। रैंक आने से आपको और मेरे को मजा बहुत आता है, मेरे को प्रमोट करने में, आपको अपने में लगता है आई हैव डन समथिंग इन लाइफ, आई विल बी रिपीटिंग दैट, आई विल बी डूइंग इट अगेन। कोई भी काम अच्छे से करने से मजा अलग होता है, सो वो मजे की बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा झनक्रीत बढ़िया नहीं हूं, लेकिन एक चीज मिसिंग हो जा रहा है कि जब हम लोग मान लीजिए क्लासरूम में भी एसबीआर पढ़ रहे हैं, फिर मैंने बोला कि एसबीआर का ही एग्जाम दो, एटलीस्ट 70+, 70 to 80, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट में रैंक एपीएम जैसा सब्जेक्ट में 70 के प्लस आने से रैंक इंडिया का तो गारंटी है, कुछ 75 से बेसी ले आए वर्ल्ड रैंक आ जाएगा, नॉट 90s। आपको 70 से 80 के बीच में नंबर लाना है, तब रैंक आएगा। वो मेरे को दिखेगा, आपको मेरे को दिखेगा। वी विल बी एबल टू सी इन द क्लास, एवरीबडी विल बी एबल टू सी, नॉट यू एंड मी, कि झनक्रीत कुछ कर रहा है। ठीक है, अभी तक वो नहीं किए, लेकिन मे बी यू हैव सबमिटेड 1 or 2 times मन से आंसर, बट वो वही जो हमने क्लास में डिस्कस किया आपके तरफ से अपने से, बिकॉज जरूर आएगा। जब आप आंसर पढ़े बगैर आंसर लिखोगे और देखोगे कि उनका आंसर से मेरा नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा सही है, वो दिन का वेट कर रहा हूं मैं, सबके लिए, नॉट ओनली झनक्रीत, फॉर एवरीबडी। दूसरी बात, अब एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो एग्जाम फॉर्म भर लेना है। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको अपने ACCA लॉगिन करना है, माई ACCA में विथ ID एंड पासवर्ड। वहां पर एग्जाम बुकिंग में जाना है, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है और एग्जाम बुक करना है। एग्जाम बुक करना है कैसे? वेदर वी शुड बी बुकिंग एग्जाम बाय होम और एग्जाम सेंटर। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है होम एग्जाम के लिए भी लास्ट टर्म से।
स्टिल सम प्रॉब्लम सम स्टूडेंट फेस्ड, मैं नहीं बोल रहा, बट फिर भी अगर आपकी सेंटर बगल में नहीं है, मान लीजिए योर एग्जाम सेंटर इज नॉट विद इन 20 to 25 किलोमीटर्स, मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लिया ऑलरेडी, आपका एग्जाम सेंटर उससे भी ज्यादा दूर है, आप घर से बैठकर एग्जाम दीजिए, दैट विल बी बेटर। अगर आपका एग्जाम कंक्लूड नहीं होता है, दैट कैन बी बैड लक, तो आपकी फीस नहीं ली जाएगी, आपका एग्जाम फीस वो लोग नहीं चार्ज करेंगे। और आपका एग्जाम घर से बैठकर देने से गड़बड़ होता क्यों है, उन बातों पे ध्यान दीजिए। कि मान लीजिए आपके घर में इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, जिस समय आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय घर पे बोलिए कोई इंटरनेट यूज नहीं करेगा। एट दैट टाइम नोबडी शुड यूज इंटरनेट। वाईफाई है तो भी एक बार सबको इंटरनेट बोलिए बंद करके रखेंगे, आप पूरा इंटरनेट खुद यूज करिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है घर से कि जो इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर है, आपने जिस लैपटॉप जिस मशीन पे टेस्ट किया था कि एलिजिबल ओके आ रहा है, आप बाद में उसी पे एग्जाम दीजिए, चेंज मत करिए एकदम लास्ट मिनट में। लास्ट मिनट में जब आप लॉगिन भी करते हैं तो आधे घंटे प्रॉपरली पहले लॉगिन करिए, जिससे कोई इश्यूज वगैरह आ रहा है टेक्निकली आप उसको हैंडल कर पाए। अगर आपके यहां पर कोई एक कंप्यूटर का थोड़ा टेक्निकल पर्सन है, किसी को थोड़ा बुद्धि है, जानकार है, तो इन दैट केस एक बार उसको बोलकर रखिए कि भाई मैं अगर कुछ प्रॉब्लम में आता हूं तो तुम मेरे को हेल्प कर देना। आप जिससे कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, बिकॉज आजकल मोबाइल फोन ये सब सभी हम खरीदते हैं, तो एक बार उससे बात करके रखिए कि कोई मेरे को इश्यू होगा तो मैं इन दैट केस भाई तुम्हारे से कनेक्ट करूंगा, उस समय तुम मेरे को 2 मिनट हेल्प कर देना। बिकॉज कभी कभी होता क्या है, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स विच आर यू कैन से टेकिंग योर स्क्रीन, मे बी आई कैन से जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टीम व्यूअर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है और जब आप एग्जाम का सॉफ्टवेयर चालू करोगे वो चालू करने नहीं देगा, बिकॉज उसका चांसेस है कि आप कोई चीटिंग करने वाले हो। तो ऐसा कोई भी, सारा सॉफ्टवेयर मैं भी नहीं जानता, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो आप वो सॉफ्टवेयर को पहले ही डिलीट मार दीजिए, बिकॉज नहीं तो आपका एग्जाम का सॉफ्टवेयर एग्जाम के टाइम पे रन नहीं करेगा। बिकॉज एग्जामिनर एसीसीए टीम आपको चोरी करने नहीं देगी। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके टेबल के ऊपर केवल एक लैपटॉप या कंप्यूटर और साथ में कीबोर्ड, कुछ नहीं होना चाहिए, और पूरा टेबल साफ, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉटल और एक कैलकुलेटर, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपके टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए। आप जहां से एग्जाम दे रहे हैं वो रूम क्लोज होना चाहिए, सी थ्रू कहीं से भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जामिनर टेस्ट करेगा आपको एग्जाम स्टार्ट करने के पहले। आपको अपना मोबाइल फोन रेडी कर रखना है कि फोटो खींच कर देना, दायां बायां लेफ्ट राइट नीचे ऊपर सब, अपना आईडी कार्ड रेडी रखना है, ये सब वो लोग मैसेज करते हैं। प्रॉपरली हमें तैयार रहना है। आप सोचिए आप एग्जाम हॉल में ही जा रहे हैं, आप वैसे अपने आप को पूरा रेडी रखिए। उसके बावजूद भी अगर लोड शेडिंग हो गई तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो एग्जाम में जाने के टाइम पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। बट एग्जाम घर से देना उनके लिए उचित है जिनका एग्जाम सेंटर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज्यादा है। इफ यू फेस प्रॉब्लम दे विल ऑर्गेनाइज योर एग्जाम नेक्स्ट वीक अगेन। अगर आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, सृष्टि को पता है, सृष्टि गेव एग्जाम, कुडेंट गेट थ्रू, प्रॉब्लम हुई एग्जाम देने में घर से, उन्होंने मेल किया, मैंने इंस्टीट्यूट को मेल किया, भाई इनको हेल्प करिए, हम बैक में जाकर सृष्टि को फिर से एग्जाम दिलवाए। लेकिन मैं कुछ टेक्निकली नहीं जानता, मेरे को ऐसा लगता है ये खुद भी आप कर सकते हैं। अगर आप उनका एग्जाम इंस्ट्रक्शंस मेल प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, वो बेचारे सब लिख कर दे रहे हैं कि आपको मेल करना है, आपको यहां पर कॉल करना है, सब लिख कर देती हैं। फिर भी मैं क्या बोलता हूं कि आप उनको मेल करने के साथ साथ सीसी मेरे को भी कर दीजिए, तो मैं तुरंत अपने जो इंडिया में लोगों को जानते हैं, इवन तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एसीसी इंडिया टीम हेड को मैं मेल कर दूंगा, मेरी टीम कर देगी, तो आपका चांसेस है कि एग्जाम नेक्स्ट वीक फिर से रीशेड्यूल हो जाएगा। अगर कोई ऐसी इश्यू आई तो आप इन दैट केस आपका टर्म लॉस नहीं होएगा। और अगर आपका एग्जाम सेंटर बगल में है, विद इन 25 किलोमीटर, आप एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दीजिए।
बिकॉज उससे इश्यू कम आएंगे और कोरोना का वैसा कोई प्रॉब्लम चल नहीं रहा है. सो वी शुड बी बुकिंग एग्जाम इन एग्जाम सेंटर, बट डिस्टेंस इज वेरी हाई, डोंट टेक टेंशन. और आप एग्जाम देते वक्त कोई से कुछ भी मुंह से बोले. समबडी वन स्टूडेंट कंप्लेंट मी कि जैसे सर मेरा पढ़ने का आदत है क्वेश्चन ऐसे बोल बोल के. आप अगर बोल कोई पढ़ोगे एग्जामिनर एग्जाम कैंसिल कर देगा, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट समबडी इज सिटिंग बिसाइड योर गेट एंड यू आर टेलिंग क्वेश्चन टू हिम. नॉट अलाउड. आपको एक जगह ज्यादा देर तक नहीं दिख सकते. वहां क्यों देख रहे हैं? मेरे को तो लगेगा एज ए इन्वेस्टिगेटर कि आप चोरी कर रहे हैं. आपको यह सब बात माननी होगी. आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, आप यहां 10 मिनट देखिए ना, कोई बात नहीं है. वहां पर तो आपके सामने कोई है ना, वहां कैमरा से देख रहा है, तो उसको कहीं भी गड़बड़ लगेगा वो आपका एग्जाम कैंसिल कर देगा. प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिनका 25 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है उनको तो एग्जाम घर पे ही देना चाहिए ना. दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, क्यों टेंशन लेना है? घर से निकलना जाना ये करना, आप घर पे बैठकर एग्जाम दीजिए ना. उनका गाइडलाइंस बहुत प्रॉपरली वेबसाइट पे, हमने वेबिनार रखा था अभी लास्ट मंथ जून एंड में. इंस्टीट्यूट ने बकायदा बोला आप ये ध्यान दीजिए. आप वो वेबिनार यूट्यूब पे दिया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वेबिनार अच्छे से देख लीजिए. और एग्जाम फॉर्म बुक करने के लिए ये मत सोचिए अभी 5 दिन बाद करेंगे, आज ही करना है. एग्जाम फॉर्म, एग्जाम रजिस्ट्रेशन आज ही करना है, बाद का नहीं सोचना है. बिकॉज रजिस्ट्रेशन बाद में करने से सेंटर पे देना है, सेंटर में खत्म हो गया. बिकॉज एसीसीए के स्टूडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर बहुत जल्दी फिल्ड अप हो जाता है. यू नीड टू फिल अप द एग्जाम फॉर्म टुडे ओनली. बहुत लोग पहले ही भर लेते हैं, आप एटलीस्ट आज कल में भर दीजिए. अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरने में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रहा है, आपका पासवर्ड नहीं ले रहा है, obviously me and my team cannot help you. What we can help you? You mail to the institute students@accaglobal.com along with CC to us. We will be communicating to the institute on your behalf with our connection. हम लोग आपका प्रॉब्लम दूर कर देंगे. लेकिन आपका मेल अगर इंस्टीट्यूट को नहीं गया, इंस्टीट्यूट मेरे को बोलता है why you are saying sir we will not accept your query, let the student say on his own. आप स्क्रीनशॉट वगैरह देकर जो इश्यूज है वो इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड आईडी से प्रॉपर लिखकर, एंड साथ में सीसी हमें भी कर दीजिए. हम भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम का फॉर्म जल्दी से जल्दी बुक हो जाए. इफ यू फेस एनी टेक्निकल इश्यू, वेदर एग्जाम सेंटर बेस्ड, वेदर घर पे, वेदर रिमोट एग्जाम बेस्ड. जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, मान लीजिए सुब्रत, आपका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पहले हमको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. और इंस्टीट्यूट एग्जाम्शंस नहीं अलॉट करता अनलेस एंड अनटिल फिजिकल कॉपी का स्क्रीनशॉट स्टूडेंट हमें दे. अगर हम फिजिकल कॉपी का स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे स्टूडेंट से, जिसको वो लोग बोलते हैं ओरिजिनल का स्क्रीनशॉट, वो बाद में आपको बोलेंगे योर एग्जाम्शंस आर नॉट अप्रूव्ड. फिर टू एंड फ्रोथ मेल वगैरह जाएगा, बेकाम का टेंशन होगा. तो जब तक मेरी टीम को, मधु is doing ACCA registration for last 8+ years, उनको सब पता है किसका डॉक्यूमेंट में क्या डिस्क्रिपेंसी है, किसका एक्सेप्ट होगा नहीं होएगा. तो जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा वो रजिस्टर नहीं करेंगे. आपको बोलना नहीं, आपने दे दिया है, सुबह पहले वो आते ही आपको रजिस्टर करेगी. बट अगर वो अभी रजिस्टर करेगी तो इंस्टीट्यूट एग्जाम्शंस वगैरह देने में 8 to 10 वर्किंग डेज लगाता है. मेरे ख्याल से आपका एग्जाम्शन वगैरह अप्रूव मे बी अराउंड 28 जुलाई तक हो जाएगा. एक मान के चल रहे हैं, हम उनको बोल देंगे इंस्टीट्यूट को कि इनका रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज ही इज वेल प्रिपेयर्ड, ही वांट टू गिव एग्जाम इन सितंबर. जिस दिन आपके पास मेल आएगा इंस्टीट्यूट से एग्जाम्शंस वगैरह हो गया, तुरंत उनका एग्जाम्शन फीस पे करना है और तुरंत आगे का एग्जाम फीस पे करके बुक करना है. बिकॉज व्हेन यू शेयर्ड ऑन सैटरडे और संडे, आई डोंट रिमेंबर इन द, और अगर सैटरडे संडे करते भी तो भी दैट इज नॉट अ वर्किंग डे फ्रॉम यूके पॉइंट ऑफ व्यू. तो मंडे मॉर्निंग मेरी टीम आके रजिस्टर आपको कर देगी, टेंशन नहीं लेना है. विच इज 18th यू विल बी एबल टू गिव एग्जाम, बट देयर इज नो गारंटी फ्रॉम माई साइड. As far as my understanding of last 7 to 8 years doing registration for ACCA, this time is manageable. But normally कोई भी स्टूडेंट नया आता है, हम उसको बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है कि if somebody joined today and we are doing registration today,
हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन आज कर देंगे, लेकिन आपको एग्जाम सितंबर में देने मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है. ओके, so I have already communicated. You don't need to communicate with my team. Whatever internal matters, we will do the needful. You just need to pay the exemption fees and book the exam ASAP once you will get the approval. Okay. The last thing, the APM subject which we are studying, I think we will complete everything by 15th of August. आपको ample of time मिलेगा लास्ट का 20-25 दिन मॉक पेपर्स वगैरह करने का. लेकिन जब 15 अगस्त को अगर मैं खत्म करूंगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन आजाद हुए थे वैसे, आप उसके बाद ये नहीं करेंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे, उसके बावजूद भी आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा. आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. वी आर प्रेजेंटली रनिंग ऑन 2 गियर और 3 गियर. आफ्टर 15th of August we will be taking 4th gear, and then after 25th of August we will be taking to 5th gear. तो गियर तो चेंज करना होगा ना, अदरवाइज स्पीड में जाएंगे कैसे? हाउ वी विल विन द रेस? बिकॉज इफ देयर इज अ रेसिंग और रनिंग या कुछ भी, रेस में तो अलग अलग गियर चेंज करना पड़ता है ना. तो वैसे ही आपका गियर अभी 3 गियर पे गाड़ी चल रही है, आप इसको नष्ट नहीं करिए. डोंट डिस्ट्रॉय दिस 3 गियर कार. Whatever you are doing, कहीं पर भी काम करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यह सोचना है कि आने वाले 1 महीने में मेरे को पूरा जैसे सर ने बोला है वैसे पढ़ना है. आपको पास कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा. आपका यह क्वेश्चन अराइज नहीं होएगा कि सर मैं पास होऊंगा या होंगे कि नहीं. आपका एग्जाम के दिन जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज मैं लिखूंगा विल पास और आप मेरे को बोलेंगे सर आई पास्ड. हमें वहां पहुंचना है, मंजिल एक है, रास्ते एक बनाने हैं. मेरे को आपकी बात सुननी है, आपको मेरी बात सुननी है, जिससे कि हम लोग मंजिल को अचीव कर पाए. बिकॉज सक्सेस मिलने से जो जोश आता है उसकी वर्णना नहीं की जा सकती. आज सृष्टि आप पास हो गए, जो जोश है वो जोश फेल होने से नहीं हो सकता है. जनक्रीत का नहीं हुआ, डाउन है, डीमोटिवेटेड है. इसीलिए सक्सेस आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर नॉट द पिलर्स ऑफ सक्सेस. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं पढ़ा रहा हूं और ज्यादा स्टूडेंट आएंगे और इंस्टीट्यूट मेरे को रिवॉर्ड देगा और जोश आएगा. लेकिन अगर कमती स्टूडेंट आएंगे, इंस्टीट्यूट बोलेगा सर आप जी आपका रिजल्ट खराब है, दुखी हो जाएंगे. मन में लगेगा क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या ठीक करें, माथा खराब होता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते. जब आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, घर में अच्छा नहीं, आप मोटिवेट नहीं होते. तो ऑलवेज थिंक इन लाइफ सक्सेस आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. वाई आई विल नॉट बी डूइंग एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर माई सक्सेस. मैं 1% भी कमती क्यों करूंगा? मैं पूरा का पूरा ध्यान अपने सक्सेस पे क्यों नहीं दूंगा या दूंगी? दुनिया में कोई पास हो या ना हो, मेरा नाम सबसे पहले होना चाहिए पास द एग्जाम. I gave so many exams in life. CA का 20 एग्जाम, CWA 20 एग्जाम, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम, सीमा का एग्जाम, MS फाइनेंस एग्जाम. फेल कभी नहीं हुए सर. कभी रैंक नहीं आया वो अलग बात है, CMA में तो रैंक भी आया, MS फाइनेंस में रैंक आया. फेल कभी नहीं हुए, बिकॉज इतना पढ़ के जाएंगे, ऐसे पढ़ के जाएंगे, एग्जाम को पहले से ऐसे सोच के जाएंगे कि एग्जामिनर को फेल करने के लिए दम चाहिए प्रकाश सराफ को. मे बी मेरा इंग्लिश बढ़िया नहीं है, मे बी हिंदी मीडियम, नॉट अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, पुअर इंग्लिश नॉलेज एज फार एज ग्रामर और दिस थिंग, बट फेल कभी नहीं हुए. 10 क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कभी फेल नहीं हुए. सक्सेस मिलने से जोश आता है, अच्छा करने का मन करता है. फेल होने से जिंदगी रूठ जाती है, माथा खराब हो जाता है. उसको नहीं पैदा करें. हर समय अपने ऐसा ही बीज बोएं कि वो जरूर से फ्लावर्स दे, फ्रूट्स दे. वाई वी विल बी पुटिंग सीड्स विच आर नॉट गोइंग टू गिव रिजल्ट्स. उसको सही दिशा में हम काम करेंगे तब होगा. और दुनिया में मैं हरदम बोलता हूं, सक्सेसफुल लोग कोई कोर्स करने से सक्सेस नहीं होएगा. सक्सेसफुल लोग 5% से भी कम है. आपके कंपनी में कितने लोग काम करते होंगे, आपको लगता होगा ये 2 लोग में कुछ दम है, ये कुछ करते हैं, जबकि काम हजारों लोग कर रहे हैं.
वाई दैट? वाई दोस टू आर एडमायर फॉर यू? आप उनको एडमायर करते हो, आप उनको सक्सेसफुल बोलते हो, क्यों? 1000 लोग को क्यों नहीं बोलते? हमें वो 2 में बनना है, केवल एग्जाम के लिए नहीं, हर चीज में। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एकदम कमिटेड इन लाइफ। जो करना है मेरे को मालूम है, जैसे करना है मालूम है, जो अप्रोच फॉलो करना है मालूम है, और मैं उसको करके रहूंगा। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा मेरा तबीयत खराब है, एग्जाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ऑफिस है, ये है, मैं नहीं पढ़ पाया, कोरोना हो गया, ये हो गया। ये चीज का कोई सुनवाई नहीं है। आपका रिजल्ट इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं दिया कि मे बी यू गेव द एग्जाम बिग इवन दो यू सफर्ड फ्रॉम कोरोना। आप इंस्टीट्यूट को अगर पहले लिख के भी दोगे कि आई फेस्ड कोरोना बिफोर द एग्जाम 5 days बैक, इससे क्या करें? इससे ये लिखें कि यू विल बी पासिंग द एग्जाम, यू विल बी गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स विदाउट एनी, तो फिर यार ऐसे ही बोल देते हैं। इसीलिए आप किसी को भी अपना एलाबाई नहीं दे सकते। मैं आपको कभी नहीं दे सकता कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, सॉरी मैं नहीं पढ़ा पाया, 30 साल में कभी याद नहीं है। क्यों ऐसा करेंगे? क्या प्रॉब्लम नहीं है? किसी को बोलना ही क्यों है अपना वीक पॉइंट? ऑलवेज बी स्मार्ट। हर जगह अपना काम समय पे करिए, कोई को भी आपको क्वेश्चन रेस करने का चांस ना हो। ये केवल पढ़ाई में नहीं, ये सब चीज में है। आप पढ़ रहे हैं, इसके कारण आप ऑफिस नहीं जाओगे, लेट से जाओगे, खराब है। आप ऑफिस में बोलोगे सिंस आई एम डूइंग ACCA आई एम रीचिंग ऑफिस लेट, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। व्हाई? मेरे यहां स्टाफ आके लेट बोलेगा तो मेरे को भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप दुनिया को अपना प्रॉब्लम मत बोलिए, अपने आप सही है उसको, और फिर भी सारा काम समय पे करिए, तभी जीवन में उन्नति है। एग्जाम पास होने से कुछ नहीं होना है। ओके? किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग टू आस्क?